As we continue further in our physical properties, very important physical property of carboxylic acid. Carboxylic acid, as the name suggests, it is an acid, so it should have some acidic nature. What is the reason that this carboxylic acid, it shows the acidic nature? What is the reason? Reason is simple. We know any acidic compound, when combines with water, it gives us H3O plus A minus. This is what we have learned in earlier semester, correct? And depending upon equilibrium constant for this reaction, इसका equilibrium constant निकालते हैं Ka, which we know as ionization constant for the given acid. Ka की वैल्यू जितनी हाई है उतना ही ये एसिड स्ट्रांग है, एंड Ka की वैल्यू जितनी लेस है उतना ही ये एसिड वीक है. वी नो दिस, करेक्ट? ये हमने सीखा था सेमेस्टर 2 में. अगर नहीं याद है देन रिकैप्चर कर रहे हैं अपने. फॉर एनी एसिड जब पानी के साथ कंबाइन होता है, व्हाट डज इट डू? H3O प्लस एंड A माइनस देता है. इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो Ka होता है वो नॉर्मली इस तरीके से आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अपॉन इनफैक्ट स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. आपका एसिड ये है Ha, H3O प्लस का स्क्वायर. मतलब ये होता है जितना Ka ज्यादा उतना ही H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उतना ही H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा. एंड दोस एसिड which are known as strong acid, they normally gets ionized completely when they are reacting with water, or rather say when they are dissolved in water. Those acids जब पानी के साथ कंबाइन होके ज्यादा H3O प्लस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. और जो ज्यादा H3O प्लस देगा वो उसका Ka का वैल्यू भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. एंड ऑब्वियसली there are certain acids, so though they are acids but H3O प्लस का डिसोसिएशन ज्यादा नहीं करते. उनका जो इक्विलिब्रियम होता है it remains more towards left hand side. It remains more towards left hand side, not on towards right hand side. So the concentration of H3O plus is not as high as it is required. So this type of acids are known as weak acid. ये basic concept है. एसिड का कोई भी कंसेप्ट हम देखते हैं तो उससे पहले ये चीज जरूर देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे फॉर एसिड वी नीड टू नो दिस कि पानी के साथ जब कंबाइन होता है देन हाउ मच ऑफ H3O प्लस इज बीइंग ऑब्टेन एंड हाउ मच ऑफ anion is obtained. This is what I was writing. Okay, let me write in my whiteboard over here. So that's what I mentioned over here. Acid plus H2O gives you H3O plus A minus, and dissociation constant K for this is basically H3O plus square A minus, correct? Higher the value of KH, higher H3O plus, stronger the acid, correct or not? Now before we continue further, let me explain you one important parameter. H3O plus का concentration किसके पर डिपेंडेंट रहते हैं मालूम है? इट डिपेंड्स, आपको ये जो एनायन मिल रहा है फ्रॉम एसिड, ये एनायन कितना स्टेबल है. इफ इट इज मोर स्टेबल, जितना ज्यादा ये स्टेबल है उतना ही H3O प्लस ज्यादा मिलेगा एंड यू विल गेट मोर रिएक्शन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड इफ एनायन रिमेन स्टेबल. But anion stable नहीं होता है, then what will happen? It combines back with H3O plus and goes to the left hand side reaction. और H3O plus आपको ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि anion stable नहीं हो. H3O plus के साथ वापस कंबाइन होकर कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा. It will go back, and go back मतलब concentration of H3O plus is reduced, and concentration of H3O plus is reduced. That means Ka is reduced, and Ka is reduced. That means acid is weak. That means acid is weak. So जब हम पढ़ाई करेंगे आज हमारा दो चीज पे ध्यान रहने वाला है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर एसिड. हाउ स्ट्रांग इज द एसिड? इज इट स्ट्रांग और वीक? एंड एसिड स्ट्रांग और वीक होने का रीजन कौन है? स्टेबिलिटी ऑफ anion. More stable the anion produce, more stronger will be the acid.
more weaker the anion produced, it will be okay, I think so least strong, या तो बोल सकते हैं weakest acid, करेक्ट और नॉट. सो ये कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम जाते हैं आगे. यहां पे लेट्स गो टू अवर टेक्स्ट बुक. नाउ अवर टेक्स्ट बुक compares three compound at a time. At a particular time they are comparing three compounds and they are comparing their acidity or the acidic nature. अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है एंड फिनोल, दे आर आस्किंग कि ये तीनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन वीक एसिड, कैसे कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने का एक ही रीजन है बेटा, कैसे करेंगे, नॉट दिस, पे अटेंशन ओवर हियर. कंपेयर करने का एक ही तरीका है, एंड व्हाट इज दैट तरीका, कंपेयर द एनायन प्रोड्यूस वेदर इट इज स्टेबल और नॉट. उसका जो एनायन मिल रहा है वो स्टेबल है या नहीं है. अगर वो स्टेबल बन गया एनायन तो उसका एसिड नेचर स्ट्रांग रहेगा, अदरवाइज एसिडिक नेचर वीक रहने वाला है. बराबर है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है. ओके तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है एंड फिनॉल है. कोई भी एसिड होगा वो जो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है उसका एक ही रिएक्शन हमें देखना है. वो H प्लस इसको देगा, H3O प्लस एंड A माइनस एनायन. कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये वाला H चला जाएगा, H2O के साथ H3O प्लस निकला. अल्कोहल में से ये वाला H चला जाएगा, H2O के साथ H3O प्लस निकला. फिनोल में ये वाला H चला जाएगा, H2O के साथ H3O प्लस निकला. We got reactions over here where H3O plus are removed. After those H3O plus removed, which kind of anion is remaining? यहां से H प्लस निकल जाने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग रहता है एनायन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO माइनस. याद रखना यहां से H प्लस जा रहा है, क्या निकल रहा है, H प्लस. मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करते हुए जाएगा, लूज करते हुए जाएगा तो मतलब RCO माइनस, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना छोड़ते हुए गया है. एंड वी कॉल इट कार्बोक्सिलेट आयन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. सो सेम थिंग विथ अल्कोहल में से H प्लस निकलेगा, RO माइनस विच इज नोन एज अल्कोक्साइड आयन, विच इज anion over here. एंड फिनोल में से जो निकलता है वी कॉल इट phenoxide ion. What do we need to do? We need to compare कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड स्ट्रांग है इन तीनों में से. तो अगर हमें कंपेयर करना है, what are we going to do? Our basic point is what? We need to compare their anion. कहां पे एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है. एनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास आई है वह इलेक्ट्रॉन पेयर कितना अच्छी तरीके से वो संभाल पाता है. जहां तक हम बात करेंगे अल्कोक्साइड आयन की, अल्कोक्साइड के पास ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं है कि जो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच गई है उसको संभाल पाए. उसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज रह जाता है, एंड सिंस it acquires more negative charge and it doesn't have any other capability. What I mean by capability is electron pair को delocalize करना by the forms of resonance. वो रेजोनेंस के फॉर्म में डीलोकलाइज कर दे, या किसी और को डोनेट करे, या तो उसको कोई सपोर्ट करने वाला दूसरा एटम आ जाए. ऐसा कुछ नहीं अल्कोक्साइड के पास. सिंस अल्कोक्साइड डजंट हैव एनीथिंग लाइक दिस, इसलिए वो सबसे लिस्ट स्टेबल है इन तीनों में से. कार्बोक्सिलेट आयन, अल्कोक्साइड एंड फिनोक्साइड. सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा है, अल्कोक्साइड. सिंस सबसे लिस्ट स्टेबल है तो वो क्या करेगा, H3O प्लस के साथ कंबाइन होकर इनफैक्ट वापस चला जाता है, एंड क्या बनाएगा वो, अल्कोहल. सो फॉर दिस रिएक्शन, अल्कोहल का वाटर के साथ का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन उसका इक्विलिब्रियम नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहता है. इट डजंट कम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. सिंस राइट हैंड साइड पे नहीं आता है तो वो एसिडिक नेचर नहीं दिखाता है. इनफैक्ट इट्स ओके वीकर एसिड देन वाटर ऑल्सो. अल्कोहल सबसे वीक एसिड इन तीनों में. जब फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल में ऐसा है कि जब उन्होंने फिनोक्साइड आयन दिया, यहां पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर आया है. दैट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर यू कैन सी बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस,
वो 5 जगह पे घूम सकता है. We have learnt about this resonating structure in phenol. Last semester में हमने देखा है ये phenol के resonating structure. And since ये 5 जगह पे घूम रहा है and 5 resonating structures are there, it provides you some stability compared to alkoxide. Phenoxide is more stable. Phenoxide ion stable होने की वजह से it gives you acidic nature. Phenol is acid, but it is a weak acid. इसका जब आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला गया तो Ka की वैल्यू इतनी हाई नहीं है कि उसको स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर किया जाए. What is the reason? I'm going to explain you. That's in my next point. That is in my next point. And when we come to carboxylate ion, carboxylate ion also has this negative electron pair, and that electron pair is again being resonance over here is being delocalized. If you see that, दो resonating structure मिल रहे. कितने resonating structure मिल रहे? दो. And since we are getting two resonating structure, this is a stabilized anion, and since it is a stabilized anion, it is an acid. It is a good acid compared to phenol. Strong acid तो नहीं है, but phenol से strong acid है. It is not as strong as like HCl या तो HNO3 या तो H2SO4. इसके जितना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दिस वंस. जिसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं. दिस आर ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज मिनरल एसिड, बट स्टिल इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल. व्हाट इज द रीजन? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. I think so I had explained you nicely. Over here they say alcohol, phenols and carboxylic acid contains an OH group, but the carboxylic acid are much stronger acid than alcohols and phenols. Comparison of acidic character of alcohol, phenol and carboxylic acid are based on the stability of resonating structure of their negative ions. On the negative ion, कितना negative ion stable है, हम बात उसी की कर रहे थे. We'll continue further. See हो क्या रहा है यहाँ पे? As shown in the reaction number 1, carboxylate anion are stabilized by their resonating structure. I had explained you that. So tendency to release proton is more. उसका anion stable होने की वजह से H3+ को रिलीज कर देता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. So that's why उसका एसिडिक नेचर ज्यादा है. Alkoxide ion as shown in reaction are not at all stabilized by resonance. Hence alcohols have less tendency to release a proton. So alcohols are much weaker acids than carboxylic acid. दोनों के पास OH ग्रुप है. कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, अल्कोहल ROH, OH दोनों में है, बट फिर भी फर्क है. एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू द अल्कोहल है. Okay, though they both of them they contain OH group. In case of phenoxide ion, as shown in the diagram, resonating structure carefully अगर देखेंगे, उसके resonating structure देखते हैं. उन्होंने हमें particularly 3 structure पे ध्यान देने को बोला है, and they have given the numbers to those structures 1, 2 and 3. इन तीनों स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हो कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे, उसको कौन हैंडल कर रहा है, where it is right now it's situated in benzene ring. देखते तो पता चलता है it is on carbon in all 3 cases. Correct or not? There are 5 resonating structures. Total structure कितने? 5. 5 में से 3 जगह पे this electron pair is on carbon, and carbon is considered as a less electronegative element. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और उसके पास जबरदस्ती घुसाया गया है. सो दैट मीन्स इट डजंट वांट टू हैंडल दोस इलेक्ट्रॉन. इफ इट डजंट वांट टू हैंडल दोस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वो फटाफट निकालेगा अपने पास से. निकालेगा मतलब स्टेबिलिटी कम करेगा. इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, इफ यू सी दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर, पहले स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन के पास थी, दूसरे स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन के पास. इसके पास 2 ही स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके पास 5 स्ट्रक्चर है. देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स, बट आउट ऑफ 5, 3 कंटेन्स कार्बन हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर
एंड उसमें दोनों स्ट्रक्चर ऐसे है कि दोनों के पास ओके इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे जा रही है, ऑक्सीजन के पास. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. बराबर है कि नहीं? इट्स लाइक ए क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच में एक टीम ने 5 बार कैच उछाल दिया. सामने के प्लेयर को पकड़ना था, लेकिन 3 बार ऐसे प्लेयर के पास गया जिसको पकड़ना कैच नहीं आता है. दो देर आर 5 प्रोबेबिलिटी, बट आउट ऑफ 5 प्रोबेबिलिटी 3 बार क्या हो गया, ड्रॉप कैच हो गया. यहां पे दोनों बार कैच गया, लेकिन दोनों बार काफी अच्छे प्लेयर के पास गया. नो चांसेस, दे आर नॉट गोइंग टू लीव. तो जीतने के चांसेस किसके ज्यादा हो जाएंगे? ऑलवेज कैचेस विंस मैचेस, ऐसा बोला जाता है. ओके, सो यहां पे दिस प्लेयर इज गोइंग टू विन द मैच, मतलब इज गोइंग टू ओके. कहां से कहां पहुंच गए यार मैं. एनीवे, विल कंटिन्यू फॉर द, बट यू कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्ट्रांगली हेल्ड ओवर हियर देन दिस फिनोल. फिनोल से ज्यादा. करेक्ट और नॉट? बिकॉज 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां पे थोड़े से उसका वीक लिंक आ जाती है. दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल. करेक्ट और नॉट? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेट्स कंटिन्यू इन योर बुक. इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन, as shown in diagram, resonance structure 1, 2, 3, but the structures carry a negative charge on the less electronegative carbon atom. Therefore, their contribution towards the resonance stabilization of phenoxide ion is very small. While in carboxylic ion, negative charge on the more electronegative oxygen atom, so carboxylic acid are stronger acids than alcohols and phenols, but are weaker acid than the mineral acid. Mineral acid से अभी भी वो weak है. Mineral acid like HCl, HNO3, H2SO4. करेक्ट? आपको सीक्वेंस समझ में आ रही है? विल कंटिन्यू फर्दर. यहां पे उसके बारे में बताया गया है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था. सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड reacts as an acid, then it gives you carboxylate ion plus H3O plus, and if we take its equilibrium constant RCO minus into H3O plus upon RCOH into H2O, and since H2O का concentration constant रहता है throughout the reaction, if you bring H2O to the other side, then we get K equilibrium into H2O equals to RCO minus H3O plus and RCO minus, and इन दोनों को combine होके हम नया constant बोलेंगे Ka. Ka is known as ionization constant for acid. Higher the Ka, stronger the acid. Lesser the Ka, weaker the acid. However, but Ka की जगह पे नॉर्मली डायरेक्टली वो K यूज नहीं करते. एनीवे, वो पॉइंट पे आने से पहले मैं ये अंडरलाइन कर देता हूँ. K ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ एसिड टू आयोनाइज एंड स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ. बट नॉर्मली हम Ka मेजर नहीं करते हैं, वी मेजर Pka. क्या मेजर करते हैं? Pka होता है Pka इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग Ka, एंड Pka की वैल्यू मेजर करते हैं. ओके, Pka नेगेटिव लॉग Ka होने की वजह से हायर द वैल्यू ऑफ Ka, लेसर द वैल्यू ऑफ Pka, lesser the value of Pka, and stronger the acid, higher Ka, lesser Pka. Is it fine? That's fine. I'll continue with this topic. It's not over, but I'll divide into 2 parts. One part is over.